surface area and volumes. टू टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन दोनों कर लेते हैं. इफ यू हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, its perimeter is 2 pi r, surface area is pi r square. If you have a semicircle, perimeter would be pi r plus 2r, and the surface area would be pi r square by 2. ठीक है. If you have a triangle, then semi perimeter is s, which is a plus b plus c by 2. And what about area? एरिया को ऐसे करते हैं, ए लिख लेते हैं. एरिया you can use Heron's formula, s minus a, s minus b, s minus c. That is the area of the triangle. If you have a right triangle, it is half into base into height. One more thing, which is this, that in a right triangle, midpoint of hypotenuse is equidistant. This equal to this equal to this. Midpoint of hypotenuse is equidistant from the three vertices. In a right triangle, hypotenuse is equidistant from the three vertices. If you have isosceles triangle, then these two angles will be equal. Also, the perpendicular would be bisecting the side. Perpendicular will be bisecting the sides. In case of equilateral triangle, if the side is A, then perpendicular would be always root 3 by 2A, right? Area would be root 3 by 4 side square. दूसरी बात, G divides this into 2:1 ratio. Centroid divides the perpendicular in the ratio 2:1.
लिख लिया? You have a regular hexagon, join the opposite vertices, then all there'll be 6 triangles, and these triangles would be all equilateral. रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। और जो इसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब होगा उसका हम रेडियस निकाल सकते हैं साइड के टर्म में, ठीक है? कैसे आएगा वो? दिस वुड बी a/2, दिस वुड बी 60, दिस वुड बी r। tan 60 would be perpendicular by a/2। ये रिलेशन याद कर लेना। सर्कल जो इंस्क्राइब होगा उसका रेडियस √3 a/2 होगा। सर हम्म। आप कौन सा टॉपिक करा रहे हैं सर? सॉरी, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेट। कोई बात नहीं, 1 मिनट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करा रहा हूँ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है? जी सर। रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशंस l/b ले लेते हैं। This is L, this is B, this is diagonal. P is a perimeter. A is the area, and D is diagonal. अगर हम उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? P square would be 4 L square plus B square plus 2LB, right? So perimeter square would be 4 times this is D square, and this is twice the area. ये रिलेशन लिख लेना, perimeter, diagonal और area. Relation between perimeter, diagonal and area of a rectangle. Then if you have a square, area would be side square. Diagonal would be √2a. Area will also be d square by 2. Area of a square is d square by 2. Diagonal square by 2.
Diagonal is root 2a, root 2 times the side. Perimeter would be 4a. Suppose you have a square of side A, you inscribe a circle, again you inscribe a square. तो जो नेक्स्ट स्क्वायर बनता है ना, उसकी और इसकी साइड में क्या रिलेशन होता है? B would be always A by root 2. If you keep on inscribing circle, एक और सर्कल इंस्क्राइब कर दो, फिर एक और स्क्वायर इंस्क्राइब कर दो, तो थर्ड स्क्वायर बनेगा, सपोज का साइड है C, so then C would be B by root 2. So each time you do that, the side of the square become 1 by root 2 times of the previous one. Side of the square would be 1 by root 2 times the previous square. Square के अंदर circle, circle के अंदर square, and so on. हम्म हम्म ए सबसे बड़े वाले की है। ठीक है, हो गया। If O is the center of circle, R is this, तो एरिया कितना होगा इसका? सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हो? सपोज दिस एंगल इज थीटा, व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? 360 डिग्री के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो थीटा के लिए कितना होगा? वैसे कर लो या तो यूनिटरी मेथड से। 360 का होता है पाई आर स्क्वायर, यूनिट 1 डिग्री का इतना होगा, थीटा डिग्री का इतना होगा, थीटा बाई। अब डिपेंड करता है तुम थीटा को डिग्री में ले रहे हो रेडियन में ले रहे हो। अगर रेडियन में ले रहे हो तो फिर इसको आई कैन टेक 2 पाई, है ना? तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2। पर थीटा यहाँ पे फिर इसमें रेडियन में लेना, ठीक है? डिग्री में लेना है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ये तो मालूम ही है कि अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर ऑफ सर्कल से, तो कॉर्ड हाफ हो जाता है, ठीक है? द कॉर्ड गेट्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, L/2 L/2 होता है। ये भी याद कर लेना कि
angle subtended by an arc at the center is always 2 times the angle subtended at circumference. अगर एंगल थीटा है सरकमफ्रेंस पे तो सेंटर पे 2 थीटा होता है, ट्वाइस हो जाता है. सपोज यू हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड ए. एक सर्कल बनाओ इस तरह से, ओ को सेंटर लेके, इस पॉइंट को सेंटर लेके एक सर्कल ऐसे बना दो, आर्क. क्वेश्चन अब ये है तुम्हारे लिए, फाइंड द एरिया ऑफ दिस लीफ. इसका एरिया कैसे आएगा? इफ साइड इज ए, कट कर दो. सर हाँ. इस क्वेश्चन के लिए जैसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर हम्म. जो अब सर अब हमें से कौन कंसिडर करें या फिर नहीं, ट्रायंगल? कौन कौन कहाँ से हो, ये तो 2 डायमेंशन है. करो हाँ टरो, 5 minutes ट्राई. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. हम्म. हाफ पाई आर. आर तो यही हो गया. आर इज ए ओनली. ऐसा करो, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, और इसको एक्स ले लो. तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ द सर्कल ना. ये तो सेम ही है. तो एक्स प्लस वाई क्या हुआ? क्वार्टर ऑफ ए सर्कल. ये क्वार्टर ऑफ ए सर्कल हुआ ना, 1/4 क्वाड्रेंट. ठीक है. और 2x प्लस वाई होगा a². आर ए के बराबर ही इनफैक्ट है ना. नहीं. पाई सर्कल हो गया ना, ये सेमी क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हो गया. हम्म. ट्रायंगल तो वैसे ही आ जाएगा, a²/2. हाँ. हाँ, वैसे वो ही एक ही बात है, उससे भी कर सकते हो. फिर इसको ट्वाइस कर दो. तो अब हमें y निकालना है ना, तो यहाँ से एक्सेस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा पाई a²/4 माइनस y प्लस 2y इज इक्वल टू a². तो पाई a²/2 माइनस 2y, ये तो y था ना, तो माइनस y इज इक्वल टू a². ठीक है, वही आ गया. पाई a²/2 माइनस a². ये. हम्म. अब पाई को 20 a² कॉमन ले लो. पाई को 22/7 डाल दो. ये रिजल्ट याद कर लेना तुम, ठीक है. तो ये आएगा रिजल्ट तुम्हारा, y इज इक्वल टू 2 से तो 11 कट जाएगा,
4a² / 7। ये रेडीमेड रिजल्ट याद कर लो। दिस एरिया इज ऑलवेज 4a² / 7। हाँ वही हो जाएगा, राइट ट्रायंगल है ना। यही आएगा, π² / 2 - a² आएगा। हम्म। तो 4a² / 7 याद कर लो। ये रिजल्ट याद करो। इससे पहले ये किया था। इससे पहले लास्ट क्लास वाला किया। तुम ले लो सेल्फी इसकी। अच्छा ठीक है। तो 4a² / 7 रिजल्ट याद कर लेना, ठीक है। वो भी सही था, इसको बीच में से ड्रॉ करके क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल माइनस ट्रायंगल, फिर इसको 2 टाइम्स कर दो, ठीक है। इसमें ये आंसर आएगा। हमें ये याद करना है अब। देन क्यूबॉइड LBH। अगर वॉल का एरिया निकालना है सिर्फ, एरिया वॉल्स क्या होगा? ट्वाइस LB। नहीं, LB नहीं आएगा। ट्वाइस LH प्लस BH। हाँ। हम्म। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? हम्म। एरिया ओपन बॉक्स अगर है तो? हम्म। So this would be twice LH plus BH plus LB हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होता है इसका? LBH। इसी के से तुम्हारे क्यूब के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज थी, बॉडी डायगोनल, वर्टेक्स टू वर्टेक्स डिस्टेंस। वर्टेक्स टू वर्टेक्स ये हो जाएगा L²B²H² द रूट। दिस इज A, 6 faces, 6a², वॉल्यूम A³, बॉडी डायगोनल कितना होगा? √3 टाइम्स। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया 2πRH। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम वुड बी πr²H। लिख लिया?
पढ़ लो, तुम्हारी परसेंटेज अच्छी आ गई अब तो। पढ़ाई में फोकस कर लो। नाटा का स्कोर अच्छा जाएगा। दे दिया एक नाटा। हाँ। नहीं। कब है? 10 जून। हम्म, अभी है। उल्टा। नाटा का जो स्कोर है वो 200 मार्क्स का पे होता है ना, तो उसका परसेंटेज लेते हैं। 1/4 करना पड़ेगा। सबके लिए। बोर्ड का कब, सीबीएसई का कब रिजल्ट आ रहा है? अच्छा। राइट सर्कुलर कोन। सेमी वर्टिकल एंगल। LHR। तो हेमिस्फीयर। सर आपसे एक बेसिक डाउट पूछना है। हम्म। सर सीएससी का काउंट काउंट कैसे करते हैं, मतलब कर्व जो सी। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। हाँ सर। इसलिए कर्व सरफेस एरिया है। अच्छा। उसमें अगर फ्लैट वाला भी टोटल में फ्लैट भी ऐड हो जाएगा, जैसे इसमें πr² फ्लैट सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया 2πr² है, दोनों को ऐड कर दिया, इस 3πr²। नहीं, अभी नहीं आया। हम्म। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे ये। पहले तो एप्टीट्यूड सेम डे मिल जाता था। अच्छा। इज ए होलोस्फेयर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका? बाहर का एरिया 2πrh प्लस ये वाला अंदर वाला 2π r h प्लस 2 टाइम्स ये वाला एरिया, ये πr² माइनस πr²। और अगर तुम्हें इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इन द सेंस कि इसमें कितना ये इस मटेरियल का वॉल्यूम, ठीक है, जिसका ये बना हुआ है, तो आउटर वॉल्यूम निकाल के इनसाइड वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, πr² h माइनस πr²h।
टेट्राहेड्रन मालूम है ना? अजीब सा क्यों बन रहा है? इफ द साइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज ए, कितने फेसेस हैं इसमें? से पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, 4 फेसेस, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? हर फेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम कितना है, किसी को पता है इसका कितना होता है? मेरे को सही याद नहीं है, बट आई थिंक AQ/6 √2 होता है। करना गूगल, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, याद कर लो। करें क्वेश्चंस, हो गया?
सही है। ये लॉन है। इसको एक्स ले लो। पूरा डायमेंशन दे रखा है तुम्हें, 60 and 40। और दीपेश, कहाँ हो तुम आजकल? क्या हुआ? क्वाड्रेटिक बन जाएगी इसमें, और क्या है? क्या क्वेश्चन है? तो टोटल एरिया हो गया 40 into 60, है ना? लॉन का एरिया कितना है? 2109। अब इसमें क्या तुम करोगे, रॉड वाला एरिया निकाल दो, कितना है रोड का एरिया? 60 into x प्लस 40 into x, लेकिन ये डबल काउंट हो रहा है बीच वाला, ये -x² कर दो। ये डबल काउंट हो गया ना। व्हेन आई फाइंड द, इस रोड का एरिया, इस रोड का, सो विड्थ ऑफ द रोड इज x, तो बीच का पोर्शन x² हो गया, वो डबल काउंट हो गया, तो हमने उसको माइनस कर दिया। ये लेंथ 60 है, विड्थ इसकी रोड की वो है x। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई? x² प्लस 100x, ये माइनस कर दो, 2400 माइनस 2109, 291। 291। अब ऑप्शन से तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ऑप्शन में 3 भी आ रहा है। x² प्लस 97x प्लस, नहीं 103। हाँ, ये माइनस है ना, तो फिर क्या होगा? हम्म। हम्म। और ये माइनस है, तो आंसर इज 3।
ठीक है, हो गया। क्या हुआ? सर लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो है ना सर वो, हाँ। जो तुम्हारा हो गया पेपर? नाटक कैसा हुआ? फिजिक्स में कुछ आया था? मैथ्स? क्वेश्चंस क्या थे बताओ, लिखे कुछ? भेजो, मुझे भेज दो, ग्रुप में डाल दो या तो। अच्छा, क्या फोटो बनाई तुमने?
रेशियो बिटवीन द लेंथ, तो लेंथ ले लो 3x, ब्रेड्थ हो जाएगा 2x, पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका? ट्वाइस ऑफ हाँ, 5x। ये पेरीमीटर हो गया, दैट इज 10x. सो टाइम इज बीन गिवन टू अस, तो पेरीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाए ना। 12 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 फाइव बाई 18, 8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा। तो दिस वुड बी x, x इज 160। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया वुड बी 6x स्क्वायर, 6 इंटू 160 का होल स्क्वायर, टू सर 6। सर बी। ठीक है, हो गया, लिख लिया। पढ़ लो, मम्मी बोल रही है तुम पढ़ती नहीं हो बिल्कुल भी घर में, घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही हो तुम। मम्मी आ रही है आज बात करने। क्यों? वो करना ठीक कर दो। बी फॉर मुंबई। हम्म। बालों को कौन ब्लीच कराता है? फेस, फेस कराते हैं। फेस का होता है, बालों का, बालों का कलर होता है। शैम्पू करते हैं, क्लीन करते हैं, शैम्पू करते हैं। इन एरिया का मैंने फॉर्मूला दिया था ना, परसेंटेज चेंज। फाइनल बाय इनिशियल -1 into 100 is the formula for percentage change.
इनिशियल एरिया ले लेते हैं ए, विच इज एल इंटू बी। फाइनल एरिया क्या होगा? लेंथ हैज श्रिंक बाय 20% ना, तो 0.8 लेंथ हो गया, नया लेंथ। 20% 20% से कम हो गया, दूसरा 10% से डिक्रीज हुआ विड्थ, तो 0.9 हो गया, तो 0.7 एल बी हो गया ये। तो फाइनल इज 0.7 एल बी डिवाइड बाय एल बी -1 × 100। एल बी कट जाएगा, -28 है, 28। दूसरा बोर्ड देख रहा, ट्राई कर रहा था। बहुत छोटा है लेकिन। बड़ा नहीं हो सकता ये? बड़ा नहीं होगा ना? फायदा नहीं है फिर इसका। ये वाला ट्राई कर लेते हैं। ग्रीन है अभी। हाँ। हाँ बट ग्रीन का अच्छा नहीं नजर आ रहा है तुम्हें? ग्रीन नजर आ रहा है कैसे? कहाँ पे? पहले कहाँ का था? ये होगा। अब क्या बता रहे तुम? ये वाला वाइट तो है ऑलरेडी। ग्रे ले लेते हैं। हाँ। आ रहा है ना इधर? छोड़ दे फिर। बोर्ड पे करना है तुम्हें? बोर्ड पे करना है? तुम बोल रहे मैंने किया हुआ है ये। हाँ। 8 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। 814 820 840 844। पहले समझ लो क्या करना है इसमें।
स्क्वायर टाइल का डायमेंशन नहीं दे रखा ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो उसको। हम्म। मतलब कंप्लीटली पे हो जाना चाहिए ना फ्लोर, एंड से स्क्वायर टाइल। कुछ बचना नहीं चाहिए, टाइल की कटिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो ये तब पॉसिबल हो, कब पॉसिबल होगा ये? जब वो टाइल का डायमेंशन विल बी, मतलब ये दो नंबर उसके मल्टीपल होंगे, वो एचसीएफ होना चाहिए। हाँ, तो पहले हमें टाइल का वो निकालना पड़ेगा डायमेंशन। टाइल का जो डायमेंशन होगा इल बी एचसीएफ जीसीडी ऑफ द टू डायमेंशंस, ताकि वो दोनों साइड में कंप्लीट आ जाए। ये हुआ ना, द डायमेंशन। हाँ, तो उसमें ऐसे नहीं करना है, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का तरीका होता है कि इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन नंबर, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एक तो वो तरीका है। बट वो उससे होगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। बेटर तरीका ये होता है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। 517 को डिवाइड करो छोटे नंबर से। लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। क्या आएगा माइनस करके बताना। 51615 आ रहा है पक्का? फिर जो अब रिमाइंडर आ रहा है ना, उससे प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड कर दो अब। ये इसका तरीका होता है। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उससे प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड कर दो। बिकॉज प्राइम फैक्टर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। कितना आ रहा है ये बताओ। 287। फिर जो डिवाइजर था प्रीवियस, उसको रिमाइंडर से डिवाइड करो। कितना आ रहा है? टू तो टाइम्स आएगा ना। 574 हो जाएगा। 41 आ गया। अब 41 को 287 से करो, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो जो एंड में जाके रिमाइंडर आता है, जो एंड में जाके रिमाइंडर आएगा, तब जो डिवाइजर होता है दैट इज एचसीएफ। हाँ, तो 41 तुम्हारा हो गया। बिकॉज ये जो लेंथ है वो भी इस ए से डिवाइड होनी चाहिए ना कंप्लीटली, बिकॉज कंप्लीटली पेव करना है, कुछ जगह छूटनी नहीं चाहिए। इस साइड में भी ए जो है 41, वो इस कंप्लीटली 515, सॉरी, 902 को डिवाइड करना चाहिए। तो हाँ, अब हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द टाइल। एरिया ऑफ द टाइल ये कर दो, और टोटल एरिया को डिवाइड कर दो। टोटल एरिया कितना है? 1517। एचसीएफ दोनों में 41 है ना, तो 41 दोनों को डिवाइड करेगा। देखो, 1517 को 41 से डिवाइड करो, कंप्लीट डिवाइड हो रहा हुआ है ये। और 902 भी 41 से डिवाइड होगा। क्या आ रहा है? ये 22। और ये नंबर कितना आ रहा है? 37 into 22।
814। इतनी टाइल्स तुम्हें चाहिए? हम्म। सही, लास्ट वाला स्टेप समझ में आया। वो आपने जो मल्टीप्लाई वाला किया, तो वो वाला बता देंगे। क्यों? सब। लास्ट में क्या किया हमने? टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल कर दिया, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। टोटल एरिया को नंबर ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ टाइल्स आ गई। एचसीएफ निकालने का तरीका याद कर लो अब। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो टिल यू गेट द रिमाइंडर जीरो, और जो लास्ट डिवाइजर होगा वही उसका एचसीएफ होता है। ठीक है। जी सर। ये ट्राई करें ब्लू। ब्लू सही है, इससे बेटर है ये। इसको इरेज हाथ से करना पड़ेगा मुझे फिर। नहीं, तो ब्लू नजर आ रही है। सब बताओ कौन सा कलर है ये? फिर कौन सा कलर है बताना जय श्री को। ग्रीन है ना? फिर ब्लू क्यों बोल रही है? क्या हो गया तुम्हें? हम्म। हिल, ये ग्रेफाइट होता है ये। इट इज नॉट लेड, इट्स ग्रेफाइट। केमिस्ट्री में कितने हैं तुम्हारे? केमिस्ट्री में तो रिवोल्यूशन तो फिजिक्स मैथ्स में कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, वो भी कम नहीं है, 90 भी अच्छी है। हो ना? वो इज्जत बचाने के लिए थोड़ा सा, हाँ भाई। नहीं, कॉलेज में तो बेस्ट फाइव ही लगेगा, किसी को बताना हो ना। किसी को बताना तो बेस्ट फोर बता दो, लेकिन ऐसा ना बेस्ट फोर तुम्हारी बेस्ट फाइव से नीचे तो आनी। वो भी इसलिए होते हैं
कई बार होता है ना कि इसमें फेल हो जाते हो, कम से कम पास हो जाते हैं 5 मिनट। ऐसा नहीं है। हाँ, हेक्टेयर को कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 हेक्टेयर इज 10,000 मीटर स्क्वायर। लिख लो। हम्म। अब क्या होगा, वॉल्यूम इक्वेट करना है तुम्हें इसमें ना। वॉल्यूम इक्वेट कर दो। 5 सेंटीमीटर रेन दे रखा है और एरिया दे रखा है हमें, है ना। तो जो 5 सेंटीमीटर रेन है ना, बेसिकली दैट इज अ हाइट। ये 5 सेंटीमीटर एरिया में दे रखा है। तो वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू द हाइट। सो एरिया कितना है? 1.5 हेक्टेयर इंटू 10,000 हो गया। इंटू द हाइट इज 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, बिकॉज हमें वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा है। तो वॉल्यूम में पूछा है उसने, ये हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा। 1,500 इंटू 5, 7,500। हाँ, 750 आ रहा है। अच्छा हाँ, एक डेसिमल भी है ना ये। 750 क्यूबिक मीटर। 1 हेक्टेयर इज 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है। हम्म। आ जाना चाहिए था, पहले तो जल्दी आता था। पता नहीं इस बार क्या किया है इन लोगों ने। सही है, डेली फालतू की वीडियो बननी है, सीबीएसई रिजल्ट आउट, सीबीएसई रिजल्ट आउट। कब तक आते हैं? आ जाएगा, तुम मत आउट हो, ठीक है। तुम लोग नॉर्मल रहो।
वॉल्यूम इक्वेट करना है ना। ये क्या तो आ जाएगा, 10 डेज में आ जाएगा। हम्म। आ गया, इसका आंसर आ गया। कर दो बोर्ड पे। फिश पे जाना, डॉल्फिन पे। डॉल्फिन पे। कहाँ गया? हम्म। अभी तो यही था। ये कौन से आ गया अब? कहाँ? चलो। हम्म। डायमीटर को तो मिली उसमें कन्वर्ट किया रेडियस में। हम्म। उससे बड़ा हो गया वहां पे अब। और बड़ा कर दिया उसको मैंने अब। चेंज करवा दिया अब। और बड़ा हो गया। ये भी बहुत बड़ा था, देखो यहाँ से, मतलब वाइट ना, ओरिजिनल।
करेंगे, वहां भी है एजेंडा में वैसे। पूरा सिस्टम में बहुत टाइम लगता है ना। फिर तो कैम वीडियो, हाँ, वीडियो कैमरा भी लगेगा ना फिर, सिस्टम भी आएगा। फिर तो हैंग करना पड़ेगा ऊपर उसको। तुम लोग गए हो साउथ एक्स कभी? ये लोग नहीं गए ना? जाना कभी। हाँ। चलो।